Good morning, children. How are you? Hope you are enjoying this online session, or we can call it as audio or video that we are sending to you. And as we are solving the problems, uh, today I'm going to take the fourth session of this Maths 8th standard. Myself, Amita Shah, and so welcome to Skylark English School. In the previous three sessions, I have explained you about different properties of the integers like commutative property, associative property, and the closure property. Now the one property left, that is distributive property and additive inverse and reciprocal of the number. So now we will start with the additive inverse. What is mean by additive inverse? Additive inverse means when we add two opposite integers, means one positive integer and one negative integer. When we add those both integers, the answer should be 0. Got it? So if I have taken -3, then we have to add one such integer so that the answer will be 0. तो 0 आंसर कब आएगा? इसमें हम -3 में +3 ऐड करेंगे तो 0 आंसर आएगा. सेम थिंग वी विल टेक इट एज अ पॉजिटिव इंटीजर फर्स्ट, दैट इज सपोज 5. सो विच नंबर यू विल ऐड to become the answer 0? That will be -5. Okay, because 5 minus 5 0, -3 plus 3 0, in such a way that the answer should be 0. So in this first example, +3 is a additive inverse of -3. In the second example, -5 is a additive inverse of 5. Have you got this? Okay. Now we will go to reciprocal. This is additive inverse is for addition. Okay. Now reciprocal. What is mean by reciprocal? When we multiply a number, two integers such a way that the answer should be 1. यहाँ पे हमारा आंसर 0 आ रहा था. अभी मल्टीप्लिकेशन दो नंबर की ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे आंसर 1 होना चाहिए. ओके, सपोज वी विल टेक वन एग्जाम्पल. लेट्स सी 5. 5 मल्टीप्लाई बाय विच नंबर विल गेट द आंसर 1? तो आपको मालूम है जब जो नंबर लेते हैं उसी से अगर हम डिवाइड करते हैं तो आंसर विल बी 1. यानी 5 डिवाइडेड बाय 5 किया तो आंसर 1 आता है. तो इसका ही उल्टा लेना है हमें. रेसिप्रोकल यानी 5 का उल्टा होता है 1/5. सो व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय 5 विथ इट्स रेसिप्रोकल, द आंसर विल बी 1. हैव यू गॉट दिस? Okay, now here we can take negative integer also. -2 multiply by, how it will come? 1/-2. Then the answer will be 1. Okay, so in the additive inverse, the answer should be 0. We have to add the two opposite integers so that the answer will be 0. And in the reciprocal, we have to multiply two integers in such a way that the answer should be 1. Not integers, this is rational number, so don't take it as a integer. It is a rational number. So did you clear with this concepts, additive inverse and reciprocal? ये दोनों भी concept अलग अलग है, उनको याद रखना है. -3 अगर आपको पूछा गया तो उसका समझो. यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं. अगर मैंने -11 दिया है तो उसका एडिटिव इनवर्स पूछा तो आपको सिर्फ +11 लिखना है. लेकिन रेसिप्रोकल अगर लिखना है तो 11 का रेसिप्रोकल हो गया 1/11. ओके, अगर -25 दिया है तो उसका रेसिप्रोकल हो गया 1/-25. हैव यू गॉट दिस? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एडिटिव इनवर्स एंड रेसिप्रोकल. Okay, now we are going to see the distributive property of multiplication over addition. यानी जहाँ पे दो नंबर ऐड किए होंगे और तीसरे नंबर में मल्टीप्लिकेशन की साइन होगी फॉर रैशनल नंबर, और वो जो नंबर्स है वो रैशनल नंबर्स है. रैशनल नंबर्स यानी जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में आते हैं. सो लेट्स सी फर्स्ट फॉर एडिशन. ओके,
ए यानी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन देखना है हमें. सो ए मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट बी प्लस सी, यानी ये जो एडिशन है उसको मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसफर करना है. तो कैसे करना है इसको, इज इक्वल टू, तो ये जो जब हम ए मल्टीप्लाई करते हैं बी प्लस सी से, तो यहाँ पे क्या करना है, पहले ए से बी को मल्टीप्लाई करना है और ए से सी को. इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन. हमने क्या किया, ए को हमने बी और सी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया. समझ में आ गया, ए को हमने बी और सी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. सो ए जो है वो बी के साथ भी आएगा और ए जो है वो सी के साथ भी आएगा, और साइन रहेगी प्लस बिकॉज इट इज अ एडिशन. हैव यू गॉट दिस? ओके. नाउ सेम विद द सब्ट्रैक्शन. दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. सेम थिंग, सिर्फ माइनस साइन आएगी. ए इन द ब्रैकेट बी माइनस सी. यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूट ए को करना है बी और सी में. सो ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस ए मल्टीप्लाई बाय सी. समझ में आ गया? यही अब हम चेक करेंगे डिफरेंट रैशनल नंबर्स लेके कि ये प्रॉपर्टी सही है या गलत है, वो आपको चेक करना है. ओके. सो we will take the example, we will take some 3 rational numbers such as, okay, I will turn this and I will show you here. Okay, so here we had taken 3 rational numbers as minus 3 upon 4, 2 upon 3 and minus 5 upon 6. These are the 3 different rational numbers. We have to distribute this. So this is our A, this is B and this is C. Our equation is A multiply by B plus C, that is A minus 3 upon 4 multiply by bracket 2 upon 3 plus minus 5 upon 6. ये हो गया हमारा इक्वेशन. अभी हमें क्या करना है, वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट माइनस 3 अपॉन 4 इंटू दीज टू बी एंड सी. ओके. तो पहले क्या करना है, माइनस 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 3, माइनस 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 3 प्लस माइनस 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 अपॉन 6. अभी हमें क्या करना है, इसको मिनिमाइज करना है, लोअर लेवल तक लेके आना है. तो जो टेबल में अगर वही है, अभी 3 और 3 दोनों एक ही टेबल में है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 एंड 4 एक टेबल में है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. तो अभी यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया, माइनस की साइन रखनी है, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, सो माइनस 1 अपॉन 2 प्लस यहाँ पे भी 3 और 6 एक टेबल में है, सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन है, इसीलिए हम दोनों नंबर की डिवीजन कर रहे हैं. ये एक्चुअली डिवीजन होती है. समझ में आ रहा है? जो अपॉन है, अपॉन यानी ये डिवाइड बाय ये भी हो सकता है. ओके. तो इसीलिए हमने इसको मिनिमाइज किया. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 2 आया, तो माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज माइनस 5 और 4 2 जा 8. ओके. यहाँ पे माइनस साइन है हमारी, इसीलिए माइनस माइनस प्लस हो गया. ये माइनस साइन है और ये माइनस है, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो यहाँ पे आया प्लस. सो हमारा आंसर फाइनल क्या आया, माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 8. अभी हम प्लस कब कर सकते हैं, ऐड कब कर सकते हैं, अगर ये दोनों डिनोमिनेटर इक्वल हो तो ही. तो अभी इसको पहले हमें इक्वल करना है. तो 2 के टेबल में 8 आता है, यानी 2 4 जा 8, यानी 4 एक्स्ट्रा हो गया है, ये 2 और ये 2 कट हो गए, तो 4 से हमें इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करना है. सो माइनस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 4 करना है, और 5 अपॉन 8 को 1 से, तो एज इट इज वही सेम रहेगा 5 अपॉन 8. नेक्स्ट माइनस 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, सो माइनस 4 अपॉन 8 इसका आंसर आया, प्लस 5 अपॉन 8. अभी हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया. नाउ वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट द नंबर. तो अब ऊपर का नंबर क्या आया, ये माइनस 4 प्लस 5, माइनस 4 प्लस 5 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू, अभी इसमें एक माइनस है और एक प्लस है, इसीलिए हमें ये दोनों की सब्ट्रैक्शन करनी है. बड़ा नंबर 5 है, 5 में से 4 गया, 1 आंसर आ गया. साइन हम कौन सी देंगे, जो बड़ा नंबर है, तो बड़ा नंबर 5 है, इसलिए इसकी साइन आ गई प्लस. तो हम प्लस साइन एक्चुअली नहीं देते हैं, तो 1 अपॉन 8 इज द आंसर. तो दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. हैव यू अंडरस्टूड दिस प्रॉपर्टी? यू हैव टू यूज दिस प्रॉपर्टी इन अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल. सो योर होमवर्क इज
जस्ट नोट डाउन द होमवर्क इन योर नोटबुक्स. फर्स्ट, ये आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ही करना है. 7/5 मल्टीप्लाई बाय -3/12 प्लस 5/12. ओके, ये आपको सॉल्व करना है. सेकेंड है 9/16 मल्टीप्लाई बाय 4/12 प्लस -3/12. ओके, ये दोनों आपको सॉल्व करने हैं. यू हैव टू फर्स्ट, I will wait for 1 second. You can pause this video and write down these questions in your notebook. So note down these questions and try to solve in the same manner I have solved. Okay, try to solve this. Now we will start with the exercise 1.1 which is given in your textbook. So shall we start with this question number 1. The question is written as using appropriate property find out. तो इसमें आपको प्रॉपर्टी कौन सी नजर आ रही है उसको फाइंड आउट करके आंसर फाइंड करना है. ओके, तो यहाँ पे दिया है -2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/5 प्लस 5/2 -3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/6. अभी आपको क्या करना है, हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मालूम है कि a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c. ओके, तो यहाँ पे हमें कॉमन नंबर कौन सा दिख रहा है? यस, 3/5 इज अ कॉमन नंबर दैट वी कैन टेक एज अ a. ओके, 3/5 हमारा a मिल गया. अभी हमें मिलने हैं b और c. तो 3/5 को मल्टीप्लाई करने वाला नंबर लेना है. ओके, तो यहाँ पे पहले नंबर में हमें मिल रहा है कि 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2/3, यानी ये हो गया हमारा. ये हम लिख सकते हैं दिस इज आवर a, दिस इज आवर b. ओके, अभी यहाँ पे 3/5 से मल्टीप्लिकेशन कौन सा है? ये जो है ये प्लस है, यानी ये मल्टीप्लाई नहीं है, तो ये है मल्टीप्लिकेशन. तो ये हमारा हो गया c. तो ये a b c हमें एक साथ ले लें. ओके, इसके लिए हमने क्या किया, -2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/5 ये एक साथ लिया. अभी नेक्स्ट जो है वो हम ये दो टर्म्स है वो एक साथ लेंगे क्योंकि ये हमारा b और c है, इसलिए सॉरी a और c है, इसलिए हमें लेना है -3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/6. तो ये हमारा कैसे आया, a मल्टीप्लाई बाय b माइनस a मल्टीप्लाई बाय c. ये हमारा हो गया ऐसा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. प्लस 5/2 हम थोड़ी देर के लिए बाजू में रखेंगे, जो बाद में हम उसमें आंसर में ये सॉल्व करते जाएंगे. ओके, अभी ये जो है ये हमारा आ गया a मल्टीप्लाई बाय b माइनस a मल्टीप्लाई बाय c. तो a जो है वो कॉमन है, जो उसको बाहर निकालना है. तो इसलिए हमने क्या किया, ये जो 3/5 है ये दोनों टर्म में से बाहर निकाला. अभी ये पूरे टर्म में 3/5 बाहर निकल गया, तो बचा कौन सा, b बचा. तो हमें b लेना है -2/3 और c को वापस लेना है. यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए माइनस साइन ली और उसके साथ लिया 1/6. ओके, ये समझ में आ रहा है. ये दो पूरी टर्म है, ये पूरे टर्म में हमारा कॉमन नंबर है 3/5 जिसको हमें बाहर लेना है. कॉमन नंबर है ये दोनों में, ये जो दो सब्ट्रैक्शन है उसमें कॉमन नंबर ये 3/5 यानी हमारा a है, ब्रैकेट b माइनस c हमें करना है. तो b है -2/3 माइनस 1/6. आप जब सॉल्व करते हो तो a b c लिखो तो आपको जल्दी से समझ में आएगा. प्लस 5/2 ये भूलना नहीं है 5/2. नेक्स्ट 3/5. अभी हमें क्या करना है, इसका बेस इक्वल करना पड़ेगा. जब हमें माइनस करना है या प्लस करना है तो इसका बेस इक्वल करना पड़ता है. तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है, तो 3 के टेबल में 6 आता है. सो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6. समझ में आ रहा है. हमें ये LCM निकालना है उसका. तो ये हो गया, ये 1 है इसीलिए 1/6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, यानी ये टर्म ऐसे की ऐसे ले. लेकिन 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से. तो 2 2 ज़ा 4 यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 मल्टीप्लाई बाय 2. समझ में आ गया. तो ये है हमारा, ये ऐसे सॉल्व करना होता है. तो 2 2 ज़ा 4/3 2 ज़ा 6 माइनस 1/6. तो ये हमारा इक्वल हो गया, इसलिए हमने क्या लिखा है, डायरेक्टली लिखा है मैंने -4 -1 क्योंकि ये हमारा
बेस इक्वल हो गया डिनोमिनेटर जो 6 है, +5/2 और ये 3/5, ये लिखना भूलना नहीं है, 3/5। अभी ये क्या है, ये ब्रैकेट है यानी मल्टीप्लिकेशन की साइन है, ये हमें सॉल्व करना है और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3/5 मल्टीप्लाई है, इसका आंसर क्या आया, -4 -1, दोनों की साइन माइनस है इसलिए दो नंबर को ऐड किया है, 4 और 1 को ऐड करने के बाद 5 आंसर आता है, लेकिन साइन आएगा माइनस क्योंकि ये दोनों को साइन माइनस है, इसलिए -5/6। अभी 3/5 मल्टीप्लाई बाय 5/6, ये मल्टीप्लाई है इसलिए यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल नहीं करना है हमें, यहाँ पे हमें क्या करना है, लोअर टर्म तक लेके आना है। यानी अगर दो टर्म्स डिवीजन जो है यानी ऊपर का नंबर और नीचे का नंबर दोनों चेक करने हैं, वो दोनों एक टेबल में आते हैं क्या, यस, ये 3 और ये 6 दोनों एक टेबल में आता है, इसलिए 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये 5 और ये 5 है, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, दोनों भी कट हो गए। तो ऊपर क्या आया, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 1 आ गया, ओके। और यहाँ पे क्या आया, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी ओके, यहाँ पे आंसर हमारा आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 आया। और लेकिन यहाँ पे एक माइनस है, यहाँ पे कुछ नहीं है लेकिन यहाँ पे माइनस है, वो माइनस साइन लेना भूलना नहीं है। तो -1 अपॉन नीचे का मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या आया, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 2 1 ज़ा 2, ओके। और ये नेक्स्ट नंबर हमारा है +5/2। अब ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने की ज़रूरत नहीं है। तो -1 + 5/2 इज इक्वल टू, ये दोनों की साइन डिफरेंट है यानी दोनों की सब्ट्रैक्शन, 5 - 1 कितना आया, 4, और साइन आएगी प्लस क्योंकि 5 नंबर बड़ा है 1 से, इसीलिए 5 के आगे जो साइन होती है वो इधर आएगी। सो 4/2 बराबर है, लेकिन ये 4/2 यानी क्या, दोनों एक ही टेबल में आते हैं। सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो द आंसर इज 2। सो योर आंसर इज 2, ये ध्यान में रखना है। ये आप सॉल्व करके ले लो, पॉज करके ये पूरा लिख के लो, और इसी तरीके से आपको नेक्स्ट जो है वो आपको खुद को करना है, वो आपको मैं फोटो भेज दूंगी, उस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। तो इसमें ही अभी सेकेंड क्वेश्चन है एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच नंबर। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। एडिटिव इनवर्स मैंने पहले ही बताया कि जो नंबर दिया गया उसका बराबर से जो ऐड प्लस होगा उसको माइनस करना है, जो माइनस होगा उसको प्लस करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ, वहाँ पे दिया गया है -6/-5, ओके। -6/-5 ये जो नंबर है ये है उसका आंसर हमें क्या आना चाहिए, 0, बराबर है। लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस साइन जब डिवीजन होती है तो ये माइनस साइन कट हो जाती है, इसीलिए क्या करना है, 6/5 लेना है, या -6/5 आएगा, यस इट शुड बी -6/5 क्योंकि ये माइनस माइनस कट हो जाता है, दोनों इक्वल है, इसलिए 6/5, ये 6/5 हो गया हमारा नंबर, और उसका एडिटिव इनवर्स है -6/5, ओके, इज इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर क्या हुआ, -6/5 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 6/5। गॉट दिस? सो लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व। अभी और एक देती हूँ, वहाँ पे दिया है 2 / -9, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होना चाहिए, यहाँ पे साइन क्या आई है, माइनस, तो हमें ऐसा नंबर ऐड करना है जिसका आंसर होगा 0। समझ में आ रहा है, 0 आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2/9, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो ये माइनस, यहाँ पे कौन से भी नंबर पे माइनस हो, यहाँ पे माइनस हमें एज्यूम करना है कि ये साइन माइनस बाहर आया है, ऐसे एज्यूम करना है। तो यहाँ पे प्लस साइन आनी चाहिए, ये माइनस है तो ये प्लस आएगा, दैट इज एडिटिव इनवर्स। यहाँ पे भी देखो ये माइनस माइनस दिए है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है एक्चुअली डिवीजन में, इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस लिया है, ओके। हैव यू गॉट दिस? सो 2/9 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/9। तो इस तरीके से आपको एडिटिव इनवर्स भी लिखने हैं, दैट ऑल्सो आई एम गोइंग टू गिव यू इन द एक्सरसाइज। नेक्स्ट अभी क्या वेरीफाई करना है, माइनस ऑफ -x, -x इज इक्वल टू x होता है, यह हमें वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे दिया है x इज इक्वल टू 11/15, हमें क्या वेरीफाई करना है, माइनस ऑफ -x। तो अगर x 11/15 है तो -x कितना आएगा,
-11/15. ओके, -11/15. अभी ये दोनों की वैल्यू हमें इसमें डालनी है. सो माइनस ऑफ माइनस एक्स कितना आया? 11 -11/15. अभी ये हमने देखा है माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस कितना आंसर आता है? प्लस. तो आ गया क्या हमारा ये एक्स? ये वेरीफाई हो गया कि माइनस ऑफ माइनस एक्स लिया तो उसका आंसर सेम आता है, दैट इज +11/15. ओके, हैव यू गॉट दिस? तो ऐसे ही आपको दूसरे भी सॉल्व करने हैं. एक ही दिया है और एक. आपको ये समझ में आ गया है? यहाँ पे उन्होंने पूछा है माइनस ऑफ माइनस एक्स, यानी एक्स होता है, यह हमें वेरीफाई करना है. तो एक्स कितना दिया गया है? 11/15. इसके हिसाब से हमें माइनस एक निकालना है. एक्स का एडिटिव इनवर्स माइनस एक्स है, तो इसका एडिटिव इनवर्स आ गया -11/15. ओके, तो ये जो वैल्यू है वो इसमें डालनी है. माइनस ऑफ माइनस एक्स, दैट इज माइनस ऑफ -11/, क्योंकि हमने माइनस एक्स कितना लिया है? -11/15. तो हमने लिया माइनस ऑफ -11/15. माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो गया 11/15. तो ये एक्स और ये आंसर करेक्ट आ गया. सो दिस इज वेरीफाइड. तो ये करेक्ट है, ऐसे आपको दिस इज वेरीफाइड ये आपको लिखना है. इस तरीके से ही आपको दूसरा भी करना है. ओके, नेक्स्ट जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है. तो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे होगा? तो सपोज उन्होंने दिया है कि -13. तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या बोला था मैंने? इसका उल्टा नंबर, यानी 1/-13. दिस इज द रेसिप्रोकल, इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल. ओके, समझ में आ रहा है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और रेसिप्रोकल बोलते हैं. अगर मैंने दिया है -5/8 मल्टीप्लाई बाय -3/7. तो अभी देखो -5/8 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है? हमें दोनों का अलग से निकालना है. पहला ये नंबर निकालते हैं -5/8. इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी उल्टा करना है. कितना हुआ? -8/5. बराबर है. सिर्फ हमें नंबर को क्या करना है? उल्टा करना है. जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर आएगा, न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में जाएगा. कंटिन्यू. ओके, अभी हम ये नंबर लेंगे -3/7. माइनस साइन एज इट इज रहेगी, लेकिन इसका इनवर्स क्या आएगा? 7/3. ओके, दिस इज योर आंसर. आपको ये सॉल्व वगैरह कुछ भी करना नहीं है, आपको सिर्फ रेसिप्रोकल लिखना है. रेसिप्रोकल यानी जो नंबर दिया गया है उसका उल्टा करना है. तो यहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर है तो हम उल्टा कर सकते हैं. यहाँ पे इंटीजर दिया गया है तो ये इंटीजर को कैसे करना है? सिर्फ 1 करना है. बिकॉज ये क्या है? 13 यानी 13/1 होता है, इसलिए इसका रेसिप्रोकल क्या है? 1/13. ये याद रखो. ओके, कौन सा भी नंबर अगर सिंगल दिया हो यानी 3 दिया है तो ये 3 नहीं होता है, ये 3/1 होता है. तो इसका रेसिप्रोकल क्या हुआ? 1/3. लाइक दिस यू हैव टू राइट द रेसिप्रोकल. ये एडिटिव इनवर्स अलग है और ये रेसिप्रोकल अलग है, ये ध्यान में रखना है. ओके, सो ये जो एक्सरसाइज है वो मैं दूंगी, वो आपको एक्सरसाइज घर पे सॉल्व करना है. ओके, नाउ वी विल नेक्स्ट. If you have any doubts, then we will take it in the next session, that is 5th session. I am going to give you the answers of these questions also if you have any queries. But I need everyone's homeworks on the same day so that I can come to know that you are understanding the terms or not. Okay, till then we will see you tomorrow now. Okay, so be safe at home and be ready with your homework. Okay, bye.